तेलंगाना के वजीर बराए नक्लो हमल और पसमानदा तबकात की बहबूद पूनम प्रभाकर ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 11 मरकज़ी बजट में रियासत के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत से 8 अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा मेंबरान होने के बावजूद तेलंगाना बीजेपी के रहनुमा मरकज़ी हुकूमत पर फंड्स के हुसूल के लिए दबाव डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान वज़ीर आला और रियासती वज़रा ने कई बार वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा को तहरीरी दरखास्तें दी, लेकिन मरकज़ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। पूनम प्रभाकर के मुताबिक नरेंद्र मोदी की हुकूमत तेलंगाना के हुकूक को नज़रअंदाज करके यहाँ की तरक्की की राह में रुकावटें पैदा कर रही है, जो कि वफाकी निज़ाम के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि आने वाले बजट में तेलंगाना के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस करके रियासत के साथ इंसाफ किया जाए और देरीना मुतालबात को फौरी पूरा किया जाए। कांग्रेस रहनुमा ने वाज़ेह किया कि अगर इस बार भी रियासत को नज़रअंदाज किया गया तो वो इसके खिलाफ अवामी सतह पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल का सवाल है। గత 11 సార్లు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రయోజనం కలిగే విధంగా దేశంలో 29 రాష్ట్రాలకు తెలంగాణకు గమనించినట్టయితే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగే విధంగానే కేంద్రము తెలంగాణకు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించింది. కనీసం 8 మంది ఎంపీలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం, రాజ్యసభ సభ్యులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ బీజేపీ పార్టీ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద తెలంగాణ ప్రయోజనాలు, తెలంగాణ ప్రజల అవసరాలు, తెలంగాణ అభివృద్ధికి కావలసినటువంటి పథకాలు, నిధుల విషయం లోపల కేంద్రంపై ఆ పార్టీ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తెలంగాణకి ఈసారి న్యాయం జరగాలనే డిమాండ్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన చేస్తూ ఉన్నాం. గత 2 సార్ల ప్రజల నిరసనను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిరసనను మేము తెలియజెప్పడం జరిగింది. అయినా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎటువంటి కూడా మార్పులు లేకుండా అదే వివక్షపూరితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నిర్లక్ష్యం, అదేవిధంగా నిధుల కేటాయింపులో వివక్షను కొనసాగిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికైనా రేపు జరిగే బడ్జెట్కు సంబంధించి, రేపు బడ్జెట్ అయితే ఇవాళ అడగడంలే, దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ రిమైండర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండ్ లాస్ట్ రిమైండర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మేము గత 2 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ बीआरएस के रहनुमा आरएस परवीन कुमार ने साबिक वजीर आला के सीआर की नंदी नगर रहाइशगाह के बाहर नोटिस चस्पा करने पर शदीद एतराज़ करते हुए इसे हुकूमती कीना परवरी करार दिया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्काम बखूबी जानते हैं कि सीआर कहाँ मुकीम है, इसके बावजूद जानबूझकर उनके घर के बाहर नोटिस लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। परवीन कुमार ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि कवायद के मुताबिक 65 साल से जायद उम्र के अफराद से उनकी रहाइशगाह पर ही तफ्तीश की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत तमाम ज़ाब्तों को बालाए ताक रख कर सियासी इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी है। उनका मानना है कि ये अक़दाम महज के सीआर की छवि को नुकसान पहुँचाने और अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए किया गया है। बीआरएस रहनुमा ने खबरदार किया कि इस तरह के हथकंडों से उनकी पार्टी के हौसले पस्त नहीं होंगे और वो कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि जमहूरी रवायात का एहतराम किया जाए और सियासी कायदीन के खिलाफ इस तरह के गैर इखलाकी इक़दामात से ग्रेज किया जाए। నోటీస్ పంపించిన వాళ్ళు నోటీస్ పంపించారు, నోటీసు ఇంటి మీద అతికిచ్చారు. ఎంత ఘోరం! లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇంటి ముగ్గట, ప్రతిపక్ష నాయుడు ఎక్కడుంటాడో తెలుసు. ఆ కేబినెట్ లో ఉండే మంత్రులందరూ కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇంటికి పోయి రకరకాల పండగలకు, కార్యక్రమాలకు ఇన్వైట్ చేయడం వచ్చు, ఫోటోలు దిగడం వచ్చు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం వచ్చు, అధికారికంగా ఇవ్వడం వచ్చు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి కింద పనిచేస్తున్న పోలీసులకు మాత్రం కేసీఆర్ గారు నివాసం ఉంటున్న బంజారా హిల్సే కనిపిస్తా ఉన్నది, నందినగరే కనిపిస్తా ఉన్నది. అక్కడ గోడకు అంటించి వచ్చింది. ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైన కక్షపూరిత రాజకీయం ఏమన్నా ఉంటుందా? ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించాలి. నేను దాంట్లో లీగల్ పాయింట్స్ కూడా చెప్తాను, ఎందుకు నోటీస్ అంచడం తప్పనేది. మీరు మరి హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, కేసీఆర్ గారు ఆ నోటీస్ తీసుకుని వారు వెంటనే, ఆ నోటీసు అందిన వెంటనే, నోటీసు వారికి సమాచారం అందిన వెంటనే వారు వెంటనే ఏం చెప్పిండ్రు, అయ్యా
నేను మర్కుక్ మండలం ఎర్రవల్లి గ్రామంలో ఉంటున్నాను. నా వయసు 65 సంవత్సరాలకు పైబడ్డది. చట్ట ప్రకారం 65 సంవత్సరాలకు పైబడ్డ వ్యక్తులను మీరు వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడనే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, వాళ్ళని విచారించాలి. అంతే తప్ప మరి నేను పరిస్థితి లేదని చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్లీ కక్షతోని మళ్లీ నందినగర్ పోయి మళ్లీ ఫేస్ చేశాం. ఒక లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు, మీ మంత్రులే పోయి వారింటికి పోయి అడ్మిటేషన్ కార్డులు ఇస్తారు, కానీ మీకు మాత్రం నందినగరే కనిపిస్తున్నది. ఈ మర్కుకు రావడానికి మీకు ఇష్టం లేదు. అంటే ఎంత కక్ష రేవంత్ రెడ్డి మనసులో ఉన్నదో, ఎంత కక్ష, ఎంత వివక్ష. बैन-अल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके असरात मकामी बाजारों पर भी नुमायां तौर पर देखे जा रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन में 10 ग्राम सोने की कीमत में 19,750 रुपए की बड़ी कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद अब 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,653 रुपए की सतह पर आ गई है। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी गैर मामूली कमी देखने में आई है, जहां 1 किलो चांदी की कीमत 1,07,971 रुपए तक गिर गई है। मौजूदा वक्त में 1 किलो चांदी की कीमत 2,91,922 रुपए रिकॉर्ड की गई है, जो कि सरमायाकारों और खरीदारों के लिए एक हैरानकुन तब्दीली है। माहिरीन इक्तिसादियात का मानना है कि आलमी मालियाती हालात और बैन-अल-अक़वामी मार्केट में होने वाली तब्दीलियों की वजह से कीमतों में ये बड़ा उलटफेर हुआ है। कीमतों में इस अचानक कमी के बाइस सर्राफा बाजारों में गहमा-गहमी बढ़ गई है और लोग इस मौका का फायदा उठाने के लिए खरीदारी की तरफ माइल हो रहे हैं। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके कोठी में वाक़ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सदर दफ्तर के करीब एक सनसनीखेज डकैती की वारदात पेश आई है, जहां मुसल्ला डाकुओं ने एक शख्स पर फायरिंग करके 6 लाख रुपए लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक रशीद नामी शख्स सुबह 7 बजे अपनी स्कूटी पर नकद रकम जमा कराने ATM पहुंचा था, जहां पहले से ताकुब कर रहे 2 निकाबपोश हमलावरों ने इसे घेर लिया। जब रशीद ने रकम देने से इनकार किया और मुजाहमत की तो बदमाशों ने इसे डराने के लिए गोली चलाई, जो इसके पीर में लगी, जिसके बाद वो नकदी से भरा बैग छीनकर इसी की स्कूटी पर फरार हो गए। पुलिस ने जायवकुआ से 2 गोलियों के खौल बरामद किए हैं और जख्मी रशीद को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने इस वारदात की CCTV फुटेज जारी कर दी है, जिसमें मुल्जिमान को फायरिंग करते और फरार होते हुए साफ देखा जा सकता है। आला पुलिस हुक्काम ने मामले की संगीनी को देखते हुए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं, ताकि शहर के बीचों बीच इस तरह की जुर्रतमंदाना डकैती करने वाले मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके चरलापली और घटकेसर रेलवे स्टेशनों के दरमियान एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये वाकया आज अली असुबह तकरीबन 2:30 बजे पेश आया, जिसकी इत्तला एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने रेलवे पटरियों पर लाशें देखकर हुक्काम को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महलूकीन की शनाख्त बॉडविपल की रिहायशी 38 साला पेनटी विजयशांति, उनकी बेटी चीतना रेड्डी और बेटे विशाल रेड्डी के तौर पर की है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक विजयशांति अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थीं, जबकि उनके शौहर सरेंदर रेड्डी नीलोर में मुकीम हैं और दोनों बच्चे इंटरमीडिएट के तालिब इल्म थे। इस अचानक और इज्तिमाई खुदकुशी की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है, जिसने पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ा दी है। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और खानदान के दीगर अफराद से पूछगुछ के जरिए खुदकुशी की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के जिला करीमनगर के मंडल अलांदे कंटा में एक अकीदतमंद ने अपने पालतू कुत्ते के लिए अनोखी मोहब्बत की मिसाल कायम की है। भोगुमपौडो गांव से ताल्लुक रखने वाले संदीप रेड्डी नामी नौजवान ने समारुका सारलमा जितेरा के मौके पर अपने पालतू कुत्ते जनों की सेहत और सलामती के लिए एक खास मिन्नत मानी थी। अपनी मिन्नत पूरी होने पर संदीप ने देवियों की बारगाह में कुत्ते के वजन के बराबर यानी 6 किलो नीलविथु बंगेरम गोड़
बतौर नजराना पेश किया और अपनी अकीदत का इजहार किया। मकामी लोग संदीप की अपने जानवर के तईं इस गहरी वाबस्तगी और बेलोस मोहब्बत को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अमूमन लोग अपने खानदान के अफराद के लिए ऐसी मिन्नतें मांगते हैं। संदीप का कहना है कि अजनो उनके लिए खानदान के एक फर्द की तरह है और उसकी तंदुरुस्ती उनके लिए सबसे अहम है। इस अनोखे वाकये की तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां जानवरों के हुकूक के अलंबरदार संदीप के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। मीडिरम जितेरा के इस माहौल में ये वाकया लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जो इंसान और जानवर के दरमियान गैर मशरूत मोहब्बत की अक्कासी करता है। मीडिरम जितेरा में वापसी के सफर के लिए बसों की अदम दस्तयाबी से नाराज मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने एहतजाज के दौरान एक बस के शीशे तोड़ दिए। मुतासिरा ज़ायरीन का कहना है कि वो कल दोपहर 3 बजे से बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घंटों गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से वापसी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। मुसाफिरों ने अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहा कि स्टैंड पर न सिर्फ बसों की कमी है, बल्कि पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से ख्वातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल इंतजार और हुक्काम की बेहिस्सी ने अकीदतमंदों में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया, जिसके नतीजे में वहां कशीदा सूरत-ए-हाल पैदा हो गई और तोड़ फोड़ का वाकया पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को पुरअमन करने की कोशिश की, ताहम मुसाफिरों का मुतालबा है कि जब तक बसों की तादाद में इजाफा नहीं होता वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। आरटीसी हुक्काम ने दावा किया है कि वो भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसाफिरों का इल्जाम है कि ज़मीनी सतह पर इंतजामात मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं। मशहूर मीडिरम जितेरा के दौरान महकमा सेहत के अमले की जानिब से सरकारी एम्बुलेंसों के शर्मनाक गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है, जहां हंगामी तिब्बी खिदमात के लिए मुख्तस गाड़ियों को ज़ायरीन की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मोलोगो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस से वाबस्ता अमला मुबैना तौर पर ज़रूरी सप्लाई के पास और इमरजेंसी सायरन का सहारा लेकर आम लोगों और डॉक्टरों के रिश्तेदारों को मंदिर के मरकजी दरवाजे तक पहुंचा रहा है। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये अमला एम्बुलेंस को एक तिजारती टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है, जबकि सायरन बजाकर ट्रैफिक से रास्ता हासिल किया जाता है ताकि वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ ज़ायरीन को मंजिल तक पहुंचाया जा सके। इस गैर कानूनी धंधे की वजह से हकीकी मरीजों को बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलने में दुश्वारी का सामना है, जिस पर मकामी अवाम और अकीदतमंदों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। ज़िलई इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि ड्यूटी पर मामूर इस बदउनवान अमले के खिलाफ फौरी तादीबी कार्रवाई की जाए और सरकारी वसाइल के इस तरह के संगीन गलत इस्तेमाल को रोका जाए। ये वाकया हुकूमती निज़ाम की निगरानी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जहां लाखों लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी महकमा सेहत पर होती है। ఏమైంది అసలు? అంబులెన్స్ లో పేషెంట్ లేరు, హార్న్ వేసుకొని వస్తాడు. ఓకే, అందులో ఉన్నోళ్ళు ఎవరు? పేషెంట్ కదా? పేషెంట్ కాదు వాళ్ళు. మీరు బండి మేము మాట్లాడుకుంటాం. కిరాయి పోతాను, హార్న్ వేసుకొని వస్తాను. అంబులెన్స్ వస్తాను, ఇవ్వలేరు. ఆయన కిరాయి కొడతానా ఏం కొడతా తెలియదు. పేషెంట్ లేరు అలా, పేషెంట్ లేరు, ఏం లేరు, పేషెంట్ లేరు, పేషెంట్ లేరు అలా. బండిలో చెక్ అయిపోయి ఏమైంది? మా డాక్టర్ ఉన్నాడు అని తీసినాం. మా డాక్టర్ తీసుకొచ్చిండు. మీ డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఎల్లున్నాడు, ఇల్లు ఉన్నాడు. అదేం పా ఎలా ఉన్నాడు పా. మీ డాక్టర్ మీకు అంబులెన్స్ పంపించండా? మీకు రమ్మని చెప్పి అంబులెన్స్ పంపించండా? దర్శనానికి అంబులెన్స్ పంపించండా అమ్మా? మీకు దర్శనానికి అంబులెన్స్ పంపించండా?
దుకాణం అలగాలి మరి ఆరం వేసుకొని వస్తాను ఫ్యామిలీ వేసుకొని ముంగట దయచేసి బందోబస్తు అది బంద్ చేయండి సార్. అక్కడ గేటు బంద్ చేయమన్నా సార్, మీరు మళ్ళీ గేట్ తీశారు. जिला सिंगारेड्डी के नारायणखेड मंडल में वाक़ पंचगामा गांव से एक हैरान कुन वाकया सामने आया है, जहां मंदिर के पुजारी को गैर कानूनी तौर पर मुनशियात उगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये पुजारी मंदिर के अहाते में गेंदे के फूलों के पौधों के दरमियान छुपाकर गांजे की काश्त कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। खुफिया इत्तला मिलने पर जब पुलिस ने मंदिर पर छापा मारा तो वहां बड़ी तादाद में गांजे के पौधे बरामद हुए, जिनकी बैन अल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तमाम पौधों को कब्जे में लेकर पुजारी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़ये ने मकामी लोगों को सदमे में डाल दिया है कि एक मुक़द्दस मकाम को इस तरह के गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हुक्काम अब इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया इस काले धंधे में पुजारी के साथ कोई और गिरोह भी मुलव्वस है या नहीं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि मुनशियात के खिलाफ मुहिम में किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तिरुपति के करीब अपरापली में इस वक्त सनसनी फैल गई जब वाईएसआरसीपी के पब्लिसिटी विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक वजीर पेडी रेड्डी के करीबी साथी हरि प्रसाद रेड्डी पर एक खातून के शौहर ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि हरि प्रसाद रेड्डी जब मज़कूरा खातून के साथ कार में जा रहे थे तो खातून के शौहर, जो कि खुद भी वाईएसआरसीपी के एक मकामी सरपंच हैं, ने उनका रास्ता रोक लिया। मुश्तइल शौहर ने हरि प्रसाद रेड्डी और अपनी बीवी को ज़बरदस्ती कार से बाहर निकाला और बीच सड़क पर उनकी पिटाई की, जिसके बाद इसने गुस्से में आकर लीडर की कार को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या मुबैना तौर पर गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के तनाज़ो पर पेश आया, जिसके बाद शौहर अपनी बीवी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इतने बड़े अवामी हमले और कार की तोड़फोड़ के बावजूद हरि प्रसाद रेड्डी ने बदनामी के डर से अब तक पुलिस में कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मकामी सतह पर हुक्मरान जमात के दो अहम उहदेदारों के दरमियान इस तसादुम ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है और वाक़ये की वीडियो भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। आंध्र प्रदेश के जिला गंटूर में इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने मुबैना तौर पर साबिक वजीर और वाईएसआरसीपी के सीनियर रहनुमा उम्बत्ती रामबाबू पर हमले की कोशिश की। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब उम्बत्ती रामबाबू भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पूजा के लिए अपनी कार में जा रहे थे, जहां टीडीपी के मुश्तइल हामियों ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मुजाहिरीन लाठियों और लोहे की सलाखों से लैस थे और उन्होंने साबिक वजीर की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। इस अचानक हमले के रद्द-ए-अमल में उम्बत्ती रामबाबू ने टीडीपी क़यादत और चंद्रा बाबू नायडू के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में करने की कोशिश की और उम्बत्ती रामबाबू को बहिफाजत वहां से निकाला। वाईएसआरसीपी ने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया है, जबकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।
जिला नलगंदा के नामपली मंडल में एक इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया है, जहां सजाता नामी खातून ने अपने आशिक की बीवी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। तफसीलात के मुताबिक कीतहपली गांव के रिहायशी नगेश यादव के सजाता के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और सजाता नगेश पर दबाव डाल रही थी कि वो इसकी बेटी से शादी कर ले। जब नगेश ने इस मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो गुस्से में बिफरी सजाता नगेश के घर पहुंच गई, जहां इसकी बीवी ममता अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। संगदिल खातून ने ममता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके नतीजे में ममता बुरी तरह झुलसकर मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि मासूम बच्चा आग की लपेट में आने से शदीद जख्मी हो गया और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हमले के वक्त सजाता ने बच्चे को मां से दूर फेंक दिया था, लेकिन वो भी झुलसने से महफूज न रह सका। इस हौलनाक वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिमा सजाता ने खुद नामपली पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सपुर्दगी कर दी है। पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाकये की तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है ताकि इस संगीन जुर्म की मुकम्मल हकीकत सामने आ सके। मणिकुंडा म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 127 में वाक़ निमली नगर के मकीन उन दिनों इंतहाई अबतर सूरत-ए-हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाके में सफाई के नाकिस इंतजामात के बाइस जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और हर तरफ फैली गिलाज़त की वजह से शदीद ताफुन और बदबू ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में खंजीरों की भरमार हो गई है, जो गलियों में आज़ादाना घूमते हैं, जिससे वबाई अमराज फैलने का संगीन खतरा पैदा हो गया है। सफाई के अलावा पीने के साफ पानी की फराहमी का भी संगीन मसला दरपेश है और मकीनों का कहना है कि हुक्काम को बारहा मतला करने के बावजूद पानी वक्त पर फराहम नहीं किया जाता। बल्दियाती हुक्काम की मुजरमाना खामोशी और लापरवाही पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और उन्होंने फौरी तौर पर सफाई मुहिम चलाने का मुतालबा किया है। इलाका मकीनों ने इंतबा दिया है कि अगर जल्द ही कचरे की निकासी और पानी का मसला हल न किया गया तो वो म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने धरना देंगे। हुकूमत की जानिब से सोच तेलंगाना के दावों के दरमियान निमली नगर की ये हालत इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आंध्र प्रदेश के जिला गंटूर में सियासी सूरत-ए-हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा हो गई, जब साबिक वजीर और वाईएसआरसीपी के सीनियर रहनुमा उम्बत्ती रामबाबू के दफ्तर पर मुबैना तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के हामियों ने हमला कर दिया। मुजाहिरीन ने न सिर्फ दफ्तर के बाहर हंगामा आराई की बल्कि इमारत के शीशे तोड़ दिए और वहां खड़ी साबिक वजीर की गाड़ी को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये तमाम कार्रवाई पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में हुई, जिसके बाइस वाईएसआरसीपी के कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उम्बत्ती राम बाबू ने इसे अपनी जान लेने की एक सोची समझी कोशिश करार देते हुए हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। वाक़ये के बाद इलाके में दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान तसादुम का खतरा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। वाईएसआरसीपी की क़यादत ने इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए हमला आवरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी ने उन इल्ज़ामात पर अब तक कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया है, लेकिन शहर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 7 माह से ज़री ज़मीनों की नई पट्टादार पास बिक की तबात मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से रियासत भर के किसान शदीद परेशानी का शिकार है। महकमा माल की जानिब से मद्रास प्रिंटिंग प्रेस को 2 करोड़ 40 लाख रुपए के वाजिबात अदा न करने के बाइस इस इदारे ने तबात का काम रोक दिया है। गुज़िश्ता साल जुलाई से इस काम में रुकावटें आ रही थीं, ताहम सितंबर से नए पास बिक का इजरा मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है और अब तक तकरीबन 1,06,000 किताबचे इल्तिवा का शिकार है। ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन और मिवटीशन मुकम्मल होने के बावजूद किसानों को कानूनी दस्तावेजात नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें कर्ज और दीगर सरकारी मुराद हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। सरकारी हुक्काम का कहना है कि फंड्स की अदम अदायगी इस तात्तुल की असल वजह है, जबकि दूसरी तरफ नए टेंडर्स के अमल में ताख़ीर ने सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अब रियासत में ये वाज़े नहीं है कि उन पास बक्स की तबात की जिम्मेदारी किस इदारे को दी जाएगी, जिससे किसानों का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। कर्नाटक के जिला वजानगर के गांव काटुरू में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां अक्षय कुमार नामी 24 साला नौजवान ने अपने ही खानदान को बेरहमी से खत्म कर दिया। मुलजिम ने 27 जनवरी को अपनी 45 साला मां जयलक्ष्मी, 50 साला वालिद भीमराज और 17 साला छोटी बहन उम्रता को कत्ल करने के बाद उनकी लाशें घर के अंदर ही दफन कर दें ताकि किसी को कानो कान खबर न हो।
जुर्म छुपाने के लिए इसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर झूठी शिकायत दर्ज कराई कि इसके घर वाले अचानक लापता हो गए हैं। ताहम तफ्तीश के दौरान इसके मशकूक रवैये ने पुलिस को चौंका दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछगुछ की तो संदिल बेटे ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि इसने किस तरह इस हौलनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घर के अंदर से लाशें बरामद कर ली हैं और मुलजिम को गिरफ्तार करके इस लर्जा खेज कत्ल के पीछे छुपे असल मुहर्रिकात और वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में खौफ व हरास और सदमे की लहर दौड़ा दी है कि एक बेटा किस तरह अपने ही खून का प्यासा बन गया। बंगलुरु के एक पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद राजू को लोक आयुक्त हुक्काम ने इस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो एक ठेकेदार से 4 लाख रुपए की भारी रिश्वत ले रहे थे। ये रिश्वत मुबैना तौर पर एक चट फंड स्काम से मुताल्लिक मामले को रफ दफ करने के एवज तलब की गई थी। जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, इंस्पेक्टर ने बचने के लिए एक अजीब व गरीब ड्रामा शुरू कर दिया और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए सड़क पर काफी हंगामा खड़ा किया ताकि ऐसा लगे जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हुक्काम ने उनकी एक न सुनी। पुलिस इंस्पेक्टर की इस शर्मनाक हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोक आयुक्त ने रिश्वत की रकम बरामद करके इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उनकी मुअत्तली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस वाक़ये ने एक बार फिर महकमा पुलिस में फैली बदउनवानी और गिरफ्तारी के वक्त अफसरान के गैर पेशा वराना रवैये को बेनकाब कर दिया है। ನಿಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರೀರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರೀರಿ, ವೆಪನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ please, ಈ ಶ್ವೇತಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಿ ಸರ್. ಇವ್ರು ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಕಲ್ಲ. महाराष्ट्र की सियासत में एक नया बाब रकम करते हुए अजीत पवार की अहलिया 62 साला सुनीतिरा पवार ने रियासत की पहली खातून नायब वजीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया है। मुंबई में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब के दौरान उन्होंने अपने उहदे और राजदारी का हल्फ लिया, जिसमें रियासत की आला सियासी क़ियादत और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। सुनीतिरा पवार की इस तकर्री को रियासत में ख़वातीन की सियासी बाइख्तियारी की समत में एक बड़ा और तारीख़ी कदम करार दिया जा रहा है। वो न सिर्फ एक तजर्बाकार सियासी पस मंज़र रखती हैं, बल्कि समाजी कामों में भी उनका फ़ाल किरदार रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर हामियों में जश्न का माहौल देखा गया और मुंबई की सड़कों पर जश्न के मनाजिर सामने आए, जहां लोगों ने इस फैसले का खैर मुकद्दम किया। सियासी माहिरीन का मानना है कि सुनीतिरा पवार की काबीना में शमूलियत से हुकूमत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा और ख़वातीन के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद मिलेगी। अब सब की नज़रें उनके इंतज़ामी फैसलों पर जिमी हैं कि वो अपनी इस नई और तारीख़ी जिम्मेदारी को किस तरह निभाती है। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे
अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक